رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ، رب خداوند بادشاہ، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ۔ او رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ بادشاہ میرا بادشاہ، میرا بادشاہ، میرا بادشاہ۔ اچے کرو سر دروازے، اچے ہو سب دانوں۔ آپ سب خوش ہیں؟ آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار کلیپنگ کریں گے، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے محبت کرتا اور پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم اس جگہ پر سنڈے سروس کا آغاز کریں۔ یہ خداوند کی مرضی ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں کے تعاون کے ساتھ ہم نے اس عبادت کا آغاز کیا۔ سارا عزت، سارا جلال میرے یسوع ناصری کو ملے۔ ہاللیلویہ۔ تو آج ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے کیسے خداوند زندگی دیتا ہے اور کیسے گناہ کے سبب سے خدا کی حضوری سے انسان دور ہوتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کیسے اس کو بلاتے ہیں، ہم سیکھیں گے کلام مقدس میں سے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں مقدس یوحنا کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت، اور پڑھنے میں رہنمائی میں عظمیٰ سے درخواست کروں گا کہ وہ اس میں رہنمائی کریں گے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 5 باب اور 24 آیت اور 25 آیت سے خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ خداوند زندہ خدا روح القدس، تو جانتا ہے کہ تیرے بندہ کا علم ناقص ہے، عقل بھی ناقص ہے۔ پاک روح تجھے دعوت دیتا ہوں لفظوں کی ترتیب عطا کرنا، اور خدا پیارے خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ آج کا کلام میرے لیے بلکہ ہم سب کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے نجات اور بہتری اور ترقی کا سبب ہو۔ تیری شکر گزاری ہو یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ ہاللیلویہ۔ آج جو کچھ ہم نے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا، یسوع مسیح اپنے زبان مبارک سے خود فرماتے ہیں۔ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو خداوند جب چلتے اور ان کے ساتھ بڑی بھیڑ ہوتی، ان کے ساتھ بڑے لوگ ہوتے، انہوں نے 12 شاگرد بھی چنے اور انہوں نے اپنے باپ کی تعلیم کو شروع کیا۔ ان آیتوں کے اندر ابھی ہم نے سنا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ سچ کہتے ہیں۔ پہلی بات، یسوع مسیح سچائی ہے، اس کے اندر رتی بھر بھی گناہ نہیں ہے، اس کے اندر رتی بھر بھی کوئی کمی نہیں ہے، وہ سچائی ہے۔ یسوع مسیح سچائی سے بھرا ہوا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ سچائی کو تھام لو اور سچائی تجھے آزاد کرے گی۔ ہاللیلویہ۔ تو خداوند یسوع مسیح سچائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا ہے، جو کوئی میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے۔ خداوند یسوع اپنے باپ کی بھی بڑھوتی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی میرا کلام سنتا ہے، میں جب کلام سناتا ہوں، جو کوئی میرا کلام سنتا ہے اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے،
उस पर सज़ा का हुक्म नहीं। कैसी खूबसूरत बात है। जो बाप और बेटे पर यकीन करता है, बेटे के कलाम पर अमल करता है, बेटे की आवाज़ को सुनता है, बेटे के कलाम को सुनता है, बाप उसको कबूल करता है, उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है। हम कितने खूबसूरत लोग हैं कि हम पर सज़ा का हुक्म नहीं। किनके पास? जो बेटे को कबूल करते हैं, जो ज़िंदा खुदा को कबूल करते हैं, जो यीशु को कबूल करते हैं, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं। कहाँ से निकलकर? मौत से। याद रखिए, कलाम में लिखा है गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और वो मौत से निकलकर जिंदगी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। जो कलाम सुनकर, यीशु की आवाज़ सुनकर खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदा के बेटे को कबूल करते हैं, उस जिंदा खुदावंद की बढ़ोतरी करते हैं, बाप उनको मौत से निकाल कर, हलाकत से निकाल कर, बर्बादी से निकाल कर जिंदगी के अंदर दाखिल कर लेता है। वो लोग जिन्होंने बेटे को कबूल किया है, उसके नाम से अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया है और ज़िंदगी की तरफ आ चुके हैं, खुदा उनको अपने हजूर कबूल करता है। वो मौत से निकल चुके हैं, वो मौत से दूर हो चुके हैं, उनके पास हमेशा की ज़िंदगी आ चुकी है। हालेलुया। हम कितने खुश नसीब लोग हैं, हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी है, हमारे पास हम पर सज़ा का हुक्म नहीं रहा। हमें मौत से निकाला गया है, हमें कैद से निकाला गया है, क्योंकि गुनाह कैद है। गुनाह इंसान को कैद करता है, गुनाह तरीखी में ले जाता है, गुनाह जहन्नम की आग तक लेकर जाता है। लेकिन खुदा के बेटे यीशु ने हमें इस लायक बनाया, हमें मौत से निकाला, हमें तरीखी से निकाला, हमें ज़िंदगी के अंदर दाखिल किया। अगली आयत में और लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ा खूबसूरत यीशु ने कलाम किया है। वो लोगों से मुखातिब है, लोगों को कलाम सुनाते हैं, अपने शागिर्दों को कलाम सुनाते हैं और लोग शिफा पाते हैं, लोग ज़िंदगी पाते हैं। अगली आयत में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ। अगर अच्छा है तो एक दफ़ा इस आयत को पढ़ दें। 25 साल। हाँ जी, 25 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये अगला हिस्सा है उसका। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो लोग खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनते हैं वो जीते भी हैं। हालेलुया। एक बड़ी खूबसूरत कलाम मुकद्दस के अंदर कहानी है, नुसरत बेटे की कहानी से आप खूब वाकिब हैं, आप जानते हैं। वो एक बड़े मीर शख्स का बेटा था और वो उसने क्या किया? उसने अपने बाप से अपनी सारी दौलत का हिस्सा लिया। वो बाप को कहता है कि बाप, मेरी हिस्से की जो दौलत है वो मुझे अता कर दें, मुझे दे दें। और बाप परेशान हो जाता है। बाप आखिरकार मजबूर होकर उसे उसका हिस्सा दे देता है। और वो क्या करता है? अपनी सारी दौलत को लेकर वो चला जाता है, अपने दोस्तों के अंदर चला जाता है, बुरी राहों पर चला जाता है, गुनाह के अंदर चला जाता है। वो उस पैसे से ऐशो इशरत करता है, वो गुनाह करता है, वो बुरे लोगों के अंदर जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। अपने बाप के घर को छोड़कर वो चला जाता है। एक दिन क्या होता है? उसके पास वो पैसा खत्म हो जाता है, पैसा सारा खत्म हो जाता है। ऐशो इशरत के अंदर अपनी सारी दौलत को लौटा देता है। उसके दोस्त भी उससे छोड़कर चले जाते हैं, मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो जिंदगी से निकला हुआ था। वो एक मीर शख्स का बेटा था, वो बागी हो चुका था, वो मौत के अंदर, तरीखी के अंदर गुनाह के सबब से जा चुका था। वो मजबूर हो जाता है उस इलाका के अंदर। लेकिन क्या होता है? एक जगह पर जाता है और उस जगह पर वो काम को ढूंढता है। उसे काम क्या मिलता है? वो मालिक कहता है, मेरे सूअर चरा, क्या कर?
मेरे सूअर चरा। और वो क्या करता है, एक अमीर शख्स का बेटा, एक आलीशान लिबास पाने वाला, वो सूअरों को चराता रहता है और उसको खाना भी नसीब नहीं होता। वो वही फलियां खाता है जो सूअर खाते हैं। कितनी हौलनाक बात है कि एक अमीर शख्स का बेटा, एक अच्छी पोशाक पहनने वाला, अच्छा खाने वाला, वो सूरों के साथ बैठता है, सूरों के साथ सोता है, सूरों के साथ खाता है और उसी जगह पर रहता है। एक दिन उसको ख्याल आता है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर भी हैं, वो अच्छा खाना खाते हैं, वो अच्छा लिबास भी पहनते हैं, उनके पास पैसा भी है, वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। मैं क्यों ना अपने बाप के पास चला जाऊं, मैं क्यों ना वापस उस जिंदगी के अंदर चला जाऊं। वो सोचता है और वो चलता है। बाप दूर खड़े होकर अपने घर के पास इंतजार हर रोज करता है। इसी तरह हमारा समानी बाप भी, हमारा जिंदा खुदा भी, खुदा का बेटा यीशु हमारा इंतजार करता रहता है। जैसे नुसरत बेटे का बाप इंतजार करता है और वो आ जाता है। बाप दूर से देखता है कि मेरा बेटा आ रहा है, वो अपने नौकरों को भेजता है, इसे अच्छी पोशाक पहनाई जाए, इसे अंगूठी पहनाई जाए, इसके लिए बर्रा ज़िबा किया जाए, इसको अच्छा लिबास दिया जाए। वो कहता है कि मेरा बेटा मर चुका था, अब जिंदा हुआ है, मेरा बेटा खो चुका था, अब जिंदा हुआ है। गुनाह के सबब से बहुत सारे लोग खो जाते हैं, गुनाह के एतबार से मर जाते हैं, जिंदगी के घर से निकल जाते हैं, कलाम से दूर हो जाते हैं, हमेशा की जिंदगी से दूर हो जाते हैं। वो मर चुका था, लेकिन उसके बाप ने बड़ी ज़ाफ़त की, बड़ी दावत की और जानवर को ज़िबा किया, दावत की, लेकिन बाप ने शुक्रगुजारी की। आसमान का खुदा, मेरा खुदा, आपका खुदा, जब हम उसके बेटे के कलाम पर अमल करते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, तो बाप हमें कबूल करता है, बाप हमें अपना बेटा और बेटी बना लेता है। हालेलुया। मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, कैसे सुनेंगे? याद रखिए, दो किस्म के मुर्दे हैं, दो किस्म के मुर्दे हैं। कुछ लोग वो जो रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, ये नुसरत बेटा भी रूहानी तौर पे मुर्दा हो चुका था, और कुछ लोग वो जो मर जाते हैं, लेकिन दोनों खुदा के बेटे की आवाज़ को सुनते हैं। याद रखिए, मैं आपको पहले बयान करूंगा, याद रखिए, जब लाजर मर गया, मरियम और मार्था का भाई मर गया, यीशु नासरी अक्सर उनके पास आता, बैठता, कलाम सुनाता, उनके घर में रहता, लेकिन वो एक जगह पर, दूर जगह पर यीशु नासरी ठहरे हुए थे। वो उस जगह पर खिदमत कर रहे थे। खुदा का बेटा यीशु नासरी जानता था कि मेरा दोस्त लाजर मर चुका है, वो इस बात को खूब जानता था, लेकिन खुदावंद ने खुद देर की। जब वापस आता है मरियम और मार्था के पास, वो बड़ा रोती है, अगर यीशु तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु से गिला शिकवा करती हैं, तू यहाँ होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु उनको क्या कहता है? तसल्ली रखें, आपका भाई जी उठेगा। तसल्ली रखें, आपका भाई जी उठेगा। हाँ, वो कहती हैं, हम जानती हैं कि क़यामत के दिन जी उठेगा, लेकिन उसको पता नहीं, उन बहनों को पता नहीं, जिंदगी और मालिक तो यीशु नासरी है। मौत भी इसके इख्तियार में है, जिंदगी भी इसके इख्तियार में है। यीशु कब्र पर जाता है, यीशु लाजर की कब्र पर जाता है और वहां एक ही आवाज देता है, ए लाजर कब्र से बाहर आ जा। और लाजर क्या होता है? कफन समेत कब्र से बाहर आ जाता है, वो जिंदा हो जाता है, उसी लम्हा एक ही आवाज से जिंदा हो जाता है। हालेलुया। यीशु के अंदर कुदरत है मुर्दे जिंदा करने की। जब लाजर की बेटी मर गई, वो चिल्लाता है, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर, मेरी बेटी मर रही है, वो मर रही है। क्या होता है? एक शख्स आता है, वो कहता है कि इस आदमी को ना परेशान कर, तेरी बेटी मर चुकी है, तेरी बेटी मर चुकी है। यीशु कहता है कि वक्त पर क्या कर, इत्ताद रख, भरोसा रख, तवक्कल रख, तेरी बेटी जी उठेगी। यीशु उसके घर के अंदर जाता है और उसको कहता है कि ऐ मेरी बेटी जाग,
ऐ मेरी बेटी उठ, जिसको यीशु कहे वो जिंदगी के अंदर आ जाता है, जिसको यीशु कहे वो मौत से निकल आता है, जिसको यीशु आवाज दे, जिसके साथ यीशु हम कलाम हो, वो मौत की वादियों में से निकल आता है और हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है। हालेलुया। बेवा का बेटा मर गया था, उसको दफनाने के लिए जा रहे थे, बेवा पर यीशु को तरस आया, बेवा पर यीशु को तरस आया, उसका एक ही बेटा जो मर चुका था, और यीशु ने उस जनाजे को रोका। ये कितनी खूबसूरत बात है। यीशु ने आज तक पूरे कलाम मुकद्दस के अंदर किसी का जनाजा नहीं पड़ा, वो दफनाने के लिए लेकर जा रहे, लेकिन यीशु को क्या हुआ? तरस आया। याद रखिए, बहुत दफा यीशु को हमारे ऊपर तरस आता है, वो रोता है हमारे लिए, आंसू बहाता है, ये मेरी बेटी क्या करती है, ये मेरा बेटा क्या करता है, ये गुनाह के अंदर है, ये मौत के अंदर है, ये लाकत के अंदर है, ये सीरी के अंदर है, ये गुनाह की दलदल के अंदर फंसा हुआ है, वो मैं बचाना चाहता है। और यीशु ने उस बेटे को जिंदा किया और माँ के हवाले किया। हालेलुया। तो वो लोग जो वाज यीशु की सुनते हैं, जो कलाम यीशु का सुनते हैं, वो उसको कबूल करते हैं, उस पर अमल करते हैं, जब वो जिंदा हो जाते हैं, चाहे वो रूहानी तौर पे मुर्दा हो या दुनिया से कूच कर गए हों, वो जिंदा हो जाते हैं। जो लोग रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, जो जब खुदा के खादम कलाम सुनाते हैं, जब खुदा के खादम कलाम की आवाज़ करते हैं, उन तक कलाम पहुँचाते हैं, कलाम में लिखा है कलाम अपना असर दिखाता है, कलाम अपना बीज, एक वक्त आता है कि उसका बीज उगता है और बढ़ता है, तब जिंदगियां बचती हैं, तब रूहें बचती हैं। याद रखिए, वो लोग रूहानी तौर पे मुर्दा हैं, जो खुदा से दूर हैं, जो खुदा से बागी हैं, जो खुदा के बेटे से दूर जा चुके हैं, वो लोग मुर्दा हैं, वो लोग भागी हैं। जिंदगी किसके अंदर है? जिंदगी किसके अंदर है? खुदा के बेटे के पास। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी नहीं। यीशु कलाम खुदा है। यीशु जिसके पास नहीं है, कलाम जिसके अंदर नहीं है, कलाम जिसकी जिंदगी में नहीं है, वो जिंदगी से मुर्दा है, रूहानी तौर पे मुर्दा है, वो गुनाह के अंदर है, वो मौत के अंदर है, वो सीरी के अंदर है। कोड़ियों को दूर रखा जाता था, शरीयत के मुताबिक कोड़ियों को शहर के अंदर, वादियों के अंदर दाखिल नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो नापाक हो चुके थे, वो उनको कोड़ लग चुका था, उनको ये इजाजत नहीं थी कि अपने इलाका के अंदर जाएं, अपने लोगों के अंदर जाएं, अपने घर के अंदर जाएं, अपने लोगों से मिलें। लेकिन यीशु ने उन पर भी रहम किया। एक कोड़ी आता है, उसने शफा पाई है, वो यीशु को सजदा करता है, वो यीशु के आगे झुककर सजदा करता है। क्यों? क्योंकि उसने जिंदगी पाई है। वो किसी को भी जिंदगी दे सकता है, वो आज भी जिंदगी देता है, वो बीमारों को अच्छा करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है। और खुदा मौजज़ात का खुदा है, खुदा नामुमकिन का खुदा है। खुदा हमें जिंदगी देने के लिए आया है, खुदा हमें तरीक़ी देने के लिए आया है, खुदा हमें बहाली देने के लिए है। यीशु ने अपनी जान का फिदिया इसीलिए नहीं दिया कि हम गुनाह में रहें, हम तरीक़ी में रहें, हम अंधेरे में रहें, बल्कि इसलिए फिदिया दिया है कि हम तरीक़ी से निकलकर ज़िंदगी की तरफ आ जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम रास्तबाजी को पूरा करें, हम कलाम को पूरा करें, कलाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर लें, सच्ची तौबा करें और गुनाहों को छोड़ें, बदी को छोड़ें, ज़िंदगी पुरानी इंसानियत को छोड़ें और नए सिरे से पैदा हो जाए, नई ज़िंदगी के अंदर दाखिल हो जाए। खुदावंद यीशु चाहते हैं। हमें ज़रूरत है आज, हमें अपनी फैमिलियों के अंदर, अपनी कलीसियों के अंदर, अपने लोगों के अंदर ये कलाम सुनाने की ज़रूरत है। अगर खुदा ने आपको ये तोड़े दिए हैं, अगर खुदा ने आपको ये नेमत दी है, अगर खुदा ने आपको ये कलाम दिया है, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने कलीसिया के अंदर शेयर करें कि यीशु ज़िंदगी का मालिक है, वो ज़िंदगी देने वाला है, उसके पास ज़िंदगी है। आओ यीशु के कदमों में चलें, आओ उससे हम बरकत को हासिल करें, आओ यीशु से हम ज़िंदगी को हासिल करें। क्योंकि जो हमारी ज़िंदगी में यीशु होगा तो हमारे पास हमेशा की ज़िंदगी होगी। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाइए, आइए अपने सरों को झुकाइए। हालेलुया, हालेलुया। और सोचिए चंद मिनटों के लिए, बस सोचिए, अगर मैंने आज तक यीशु को कबूल नहीं किया, आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर खुदा का बेटा नहीं, खुदा का कलाम नहीं, मैं रूहानी तौर पे मुर्दा हूँ, तो आज सोचने की ज़रूरत है, आज सोचने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दीजिए, अपनी ज़िंदगी यीशु को दे दीजिए और पुरानी इंसानियत को छोड़कर हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाइए। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे।
ਆਮੀਨ। ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ